Students, good morning to all. And today we will read the poem Time and Time Again. It is given on page number 74 of your book Prudence. ये पेज नंबर 74 पे दे रखी है आपके टाइम एंड टाइम अगेन बाय ए के रामानुजन. ए के रामानुजन ने ये पोएम लिखी थी. फर्स्ट आई एम reading about the poet. Poet, translator, folklorist and philologist A.K. Ramanujan was born on 16th March 1920 in Mysore, India. He earned degrees at the University of Mysore and Deccan College in Pune and a PhD from Indiana University. Ramanujan wrote in both English and Kannada, and his poetry is known for its thematic and formal engagement with modernist transnationalism. A.K. Ramanujan is one of the India's finest English language poets. He is best known for his pioneering translations of ancient Tamil poetry into modern English. At the time of his death, he was professor of linguistics at the University of Chicago and was recognized as the world's most profound scholar of South Indian languages and culture. His interests include anthropology and folklore. This influenced his work as a craftsman of English. In 1976, the Indian government honored him with the title of Padma Shri, the fourth highest civilian award in the country. The Sahitya Akademi Award was conferred upon A.K. Ramanujan posthumously for the collected poem. Ramanujan's other honors include MacArthur Fellowship. About the poem. This poem represents the complex distillation of a lifetime of unusual thought and feeling. The poem describes the theory of difference among religions through the symbol of clock towers. This poem also represents the average Indian's feeling both towards human violence and nature's fury. इस पोएम में एक्चुअल में ये दर्शाया गया है कि इसमें जो है जो भी बड़े बड़े शहर होता है, आपने देखा होगा जो पुराने शहर होते हैं वहाँ पे सब जगह घंटाघर होते हैं ना, जहाँ पे बहुत बड़ी घंटी होती है और उसका घंटा बजता है. तो इसमें जो है ये कविता घंटाघरों के वर्णन के माध्यम से विभिन्न धर्मों के बीच जो भेद होते हैं ना उसके सिद्धांत का वर्णन करती है. ये घंटाघर अक्सर किसी तकनीकी खराबी के कारण अलग अलग समय बताते हैं. सब जगह एक सा टाइम नहीं होता, थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंस आता ही है. इसी प्रकार यद्यपि सभी धर्म जो है सही मार्ग दिखाने के लिए हैं, परंतु वे अक्सर लोगों को भ्रमित भी करते हैं और उसी पे ये पोएम पोएट ने बनाई है. जिस प्रकार घंटाघरों पर विश्वास किया जाता है कि वे सही समय बताएंगे, परंतु वे सब दोषपूर्ण होते हैं, या बात धर्मों के संबंध में भी है. कुल मिला के जो है रिलीजन्स है जो है सबके अलग अलग मत होते हैं, कोई एक धर्म मान के कोई चलता नहीं है, सब अपना अपना मत लगाते हैं और इस तरह से ये दोषपूर्ण स्थिति आ जाती है. तो इसमें जो है सभी चीज़ें एक सी नहीं रहती, जैसे समय एक सा नहीं रहता सभी के लिए, समय में थोड़ा बहुत जैसे फ़र्क आ जाता है क्योंकि वहाँ घंटाघर की जो है मैन्युफैक्चरिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है ना, जैसे अभी इंडिया में 12 बजी है तो मे भी पॉसिबल पाकिस्तान में 12:30 बजे, तो वो भी है कि इसमें जो है अलग अलग उसका पता चल सकता है. तो इसलिए जो है हम इस चीज़ को इस पोएम में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट आई विल रीड द पोएम. टाइम एंड टाइम अगेन और लिसन टू द क्लॉक टावर्स of any old well managed city, beating their gongs round the clock, each slightly of the other's time, deeper or lighter, in its bronze, beating out a different sequence each half hour out of the accidents of alloy, a maker's shaking hand in Switzerland, or the mutual distances, commemorating a donor's whim, the perennial feuds and seasonal alliance of Hindu, Christian and Muslim, cut off sometimes by a change of wind, a change of mind or a siren, between the pieces of a backstreet quarrel. One day you look up and see one of them, eye lies silent, a zigzag sky showing, through the knocked out clockwork after a riot, a peace march time bomb or a precise act of nature in a night of lightnings. इसमें कुछ कुछ वर्ड्स जो हैं आपको नए लगेंगे. आई विल क्लियर द मीनिंग, बीच बीच में मैं उनकी मीनिंग भी क्लियर करती जाऊंगी. इसमें जो फर्स्ट की जो लाइंस दे रखी है जैसे आपको सामने दिख रहा है, इसमें जो है और लिसन टू द क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी, बीटिंग देयर गॉन्ग्स राउंड द क्लॉक, इज स्लाइटली ऑफ द अदर्स टाइम, डीपर और लाइटर. अब इसमें देखिए इसमें कवि क्या कहना मांग रहा है. कवि ये कहता है कि किसी भी पुराने समय के जो है सुव्यवस्थित शहर के घंटाघरों की आवाज़ को सुनो
उसकी आवाज़ को सुनो, लिसन, जो कि हमेशा अपने घंटों को बजाते रहते हैं। प्रत्येक घंटा प्रत्येक दूसरे घंटे से थोड़ा सा अलग समय बताता है, कुछ आगे या कुछ पीछे। कांसा एक धातु होता है जिसका घंटा बना हुआ होता है कि भारी या हल्का होने के कारण इसके द्वारा बताए समय में हल्का सा अंतर आ जाता है, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है। यह प्रत्येक आधे घंटे पर एक अलग क्रम को बजाता है और यह अलग क्रम मिश्र धातु में किसी कमी के कारण यह स्विट्ज़रलैंड, जो कि घड़ी निर्माण का केंद्र देश है, सबसे ज़्यादा घड़ियाँ वहीं बनती है और एक परफेक्ट माना जाता है वहाँ का घड़ी बनने का और उसका टाइम का, में किसी घड़ी की निर्माता की गलती के कारण होता है। इससे अभिप्राय ये है, कहना ये चाहता है कवि कि प्रत्येक पुराने समाज में विभिन्न जो धर्मोपदेशक होते हैं, यानी जो रिलीजन को चलाते हैं, जो गुरु माने जाते हैं, प्रत्येक समय लोगों के लिए धर्म की व्याख्या करते रहते हैं। उनके अनुसार वो अपनी व्याख्या करते रहते हैं अपने अपने धर्म की, परंतु या तो उनके स्वयं के समझने में या उनके समझाने के तरीके में किसी न किसी गलती के कारण वे अलग अलग बातें बनाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है सब एक सी बातें बताएं, जबकि वास्तव में सभी धर्मों का सार एक ही होता है। तो अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें इन इंग्लिश, रामानुजन begins the poem by asking his readers to listen to the sounds of the clock towers of any old well-managed city. Well-managed city refers to a city that is economically and socially stable. देखिए ये एक जो है एक मेटाफर यूज़ किया गया है इसलिए, है ना। By listening to the sounds that are produced by the beating of the gongs of the clock towers, it could be observed that all the clock towers have a slight variation in time. Due to this variation in time amongst the clock towers, there is also difference in the sounds produced by each clock tower in order to mark the hours of a day. The variation in the time of the various clock towers is also geographically इंडिकेटिव और डिफरेंट टाइम जोन्स इन डिफरेंट कंट्रीज। कुल मिला के इसका सार यही है कि जो धर्म उपदेशक हैं जो भी है वो प्रत्येक अपने अपने धर्म की बात व्याख्या करते हैं, परंतु उनके समझाने में या खुद के समझने में थोड़ा बहुत क्या आता है, कोई छोटी सी गलती कर बैठते हैं तो वो जो है बातें जो है थोड़ी अलग हो जाती है, और जो है जबकि वास्तव में होता है क्या, सभी धर्मों का सार जो है वो एक ही होता है। नेक्स्ट हम चलें। In its bronze, beating out a different sequence each half hour out of the accidents of alloy, a maker's shaking hand in Switzerland, or the mutual distances commemorating a donor's wing. इसमें देखिए म्यूचुअल यानी इन बिटवीन, है ना, डिस्टेंसेस यानी डिफरेंसेस, कमोमरेटिंग यानी टू ऑनर द मेमोरी ऑफ समवन, किसी की स्मृति में, डोनर जो दानदाता होते हैं, विम यानी सनक जिसे कहते हैं, पेरिनियल फ्लेट यहाँ पे जो है म्यूचुअल हॉस्टिलिटी है दैट एग्जिस्ट एट एवरी टाइम, यानी दो के बीच में जो निरंतर कलह चलता रहता है ना, आपसी लड़ाई चलती रहती है, उसे पेरिनियल फ्यूड्स कहते हैं। सीजनल जो है लास्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, कम समय चलने वाला, बिल्कुल सीजनल। अलायंस एसोसिएशन, सुलह जिसे कहते हैं। चेंज ऑफ विंड, वातावरण में परिवर्तन। चेंज ऑफ माइंड, समझ में परिवर्तन। और बैक स्टेट क्वारल यानी डिस्प्यूट्स ऑन ट्राइवल इश्यूज, अलग अलग जो है सार्वहीन बातों पर झगड़ा करना। और सायरन यानी वार्निंग। तो इसमें जो है कवि इस पैराग्राफ में कहना मांग रहा है ये स्टैंजा में कि या फिर ये समय का अंतर दानदाता की सनक की स्मृति बनाने में पारस्परिक मतभेदों के कारण होता है। धर्म को समझने में अंतर इस कारण होता है कि हम अपने धर्मोपदेशक के बताए अनुसार इसे अलग अलग रूप में समझते हैं। देखिए कोई चीज़ हमारे सामने होती है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा भी थॉट जो है आपके जैसा थॉट हो उस चीज़ को लेके, है ना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबके थॉट अलग अलग होते हैं। कोई चीज़ हम देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो आपके विचार अलग हो सकते हैं और ये मेरे विचार अलग हो सकते हैं। इसके कारण हिंदू, ईसाई और मुसलमानों में निरंतर कलह और बीच बीच में कुछ समय के लिए सुलह भी होती रहती है, जो कि वातावरण में परिवर्तन या विचारों में परिवर्तन के कारण होती है। यही होता है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े इसी बात पे होते हैं, ठीक है ना, कि उनके डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक मत होके नहीं चलते, या फिर सारी इन बातों पर चलने वाले झगड़ों के बीच में समाज की चेतावनी के कारण होती है। और इसके लिए एक समाज होता है जो बार बार हमें वार्न करता है, नहीं अब आपको ऐसा नहीं करना है, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है।
तो इसके लिए भी एक व्यवस्था की हुई होती है कि जो है हमारा जो समाज होता है इन सब चीज़ों को रोकने के लिए। अगर इसका हम देखें, द पोएट देन कंटिन्यूज टू एक्सप्लेन द पॉसिबल रीजंस फॉर द वेरिएशन इन टाइम इन द डिफरेंट क्लॉक टावर्स ऑफ एनी ओल्ड वेल मैनेज सिटी। द पोएट स्टेट्स दैट एवरी half an hour a different sequence of sound is created by the different clock towers of the city। अलग अलग साउंड होते हैं सब क्लॉक टावर के, ठीक है ना। जोधपुर में अलग होगा तो जयपुर में अलग होगा इसका साउंड, या अजमेर में अगर घंटा बजता है तो उसका अलग होगा साउंड। वही बताया है कि जो अलावा जो मिश्र धातु होता है उसके जो है मैन्युफैक्चरिंग में कोई ना कोई जो है चेंज होता है या कुछ ना कोई डिफरेंस होता है, इसी के मारे जो है ये चीज़ें होती है। Probably because of the difference in the raw materials, bronze is an alloy that is made with the combination of copper and tin that are used for the creation of the clock towers. The poet then made a reference to Switzerland as it is considered as one of the most reputed hubs of watch clock manufacturing। सबसे बड़ा होता है मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे क्लॉक्स का, एंड स्विस वॉचेस क्लॉक्स का आर कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ वॉच क्लॉक अक्रॉस द वर्ल्ड। द पोएट स्टेट्स, अभी पोएट इस स्विट्जरलैंड के रेफरेंस को लेकर क्या कहना चाहता है? द पोएट स्टेट्स दैट इट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी दैट इन स्विट्जरलैंड अ मैन्युफैक्चरर्स हैंड shook shivered while manufacturing the clock towers as a result of each clock tower's gong rings at a different time. Therefore, it could be concluded that the difference in time in the various clock tower is because of human beings। और इसीलिए जो है जिस तरह से है अलग अलग क्लॉक टावर में अलग अलग आवाज़ होती है, वैसे ही ह्यूमन बींग्स का भी नेचर होता है, वो अलग अलग होते हैं। द पोएट हैज़ यूज द क्लॉक टावर एज एन इमेजरी की तरह उन्होंने, देखो यहाँ पे बहुत अच्छा लिटरेरी टर्म यूज़ हुआ है, इमेजरी इन द पोएम। द डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट क्लॉक टावर्स इन एन ओल्ड सिटी सिम्बलाइज द डिस्टेंसेज एंड द डिफरेंसेज अमंग्स द ह्यूमन बींग्स। यानी अलग अलग क्लॉक टावर है जो क्या सिंबलाइज कर रहा है कि हर एक शहर के अलग अलग ह्यूमन बींग्स होते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। द पोएट देन रेफर्स टू द रियनो पीपल हु डोनेट मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉक टावर्स। ही सेज दैट द डिस्टेंसेज एंड डिफरेंसेज अमंग्स ह्यूमन बींग्स कुड बी एन आउटकम ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ दिस रियोनोट पीपल हु डोनेट मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लॉक टावर्स। और ये किसके कारण होता है? कि उनकी सनक के कारण, कि जो दानदाता होते हैं उनकी सनक के कारण भी ऐसा हो सकता है कि नहीं नहीं हमको तो इतना ज़्यादा नहीं लगाना है, हम तो ऐसा लगाएंगे, तो उससे क्या होता है साउंड में फ़र्क आ जाता है, वो जो प्रॉपर मिक्सचर है वो नहीं बन पाता है। दिस इज़ बिकॉज द कॉन्फ्लिक्टिंग रिलीजियस बिलीव्स। और इसकी तुलना फिर इन्होंने की कि हाँ रिलीजन में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतभेद होते हैं। Of these renowned people ultimately gets transmitted in the ordinary people who reside in a city society. Thus the distances amongst human beings commemorates, that is honors the memory of these unpredictable renowned donors of the society city. These donors are the stakeholders, contractors of religion। और ये ठेकेदार होते हैं समाज के, जो ऐसे बड़े बड़े दान देते हैं वो उनको कहा जाता है ना ठेकेदार है समाज के। दैट इज़ दे यूज़ रिलीजन टू प्रोपगेट, और ये रिलीजन को ही यूज़ में लेते हैं ऐसे काम करने के लिए अमंगस्ट ह्यूमन बींग्स। हैज़ द पोएट हैज़ सब्टली पॉइंटेड आउट एट द करप्ट नेचर ऑफ दिस डोनर। और ये क्या आता है, ये बहुत दिखावा भी करते हैं और इनका, बल्कि हालांकि ये मानवता धर्म नहीं होता इनका, क्योंकि इनका अलग ही होता है, इनको शो ऑफ करना होता है अपने ना दानदाताओं को। out the corrupt nature of these donors as they ultimately contribute the religious conflicts among ordinary human beings। और फिर यही लोग वो होते हैं जो कि रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी फैलाते हैं, विरोध भी, धर्म के लिए जो है विरोध भी प्रकट करते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट। द पेरिनियल फियर्स एंड सीजनल अलायंस ऑफ हिंदू, क्रिश्चियन एंड मुस्लिम कट ऑफ समटाइम्स बाय चेंज ऑफ विंड, अ चेंज ऑफ माइंड और ए सायरन बिटवीन द पीसेज ऑफ ए बैक स्ट्रीट क्वारल। अब इसमें देखिए आगे, इसमें आगे क्या कहना चाहता है ये कि द पोएट देन ड्रैग्स अटेंशन ऑफ द रीडर्स टूवर्ड्स द प्रैक्टिशनर्स ऑफ 3 डिफरेंट रिलीजन्स, कि ये तीनों अलग अलग धर्म क्यों हैं और ये तीनों आपस में लड़ते क्यों रहते हैं। दैट इज़ हिंदुइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। द पोएट सेज दैट ऑल्दो द प्रैक्टिशनर्स ऑफ दीज 3 रिलीजन्स ओकेजनली या सीजनली form an understandable and agreeable relationship
हालांकि इनमें आपसी समझौता है, तालमेल है, yet majority of the times they are entangled in recurring feuds dispute। फिर भी इन्हीं के द्वारा जो है कई जो है लोगों के धर्मों के बीच में क्या होने लगते हैं, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। The poet then continues to say that sometimes the practitioners of these diverse religions undergo a change of temperament and enter in a state of peace and brotherhood, but majority of the time they have a disputable relationship with each other। कुछ भी हो, कभी कभी तो समझौता कर लेते हैं, कभी कभी बड़े अच्छे से रहते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो है क्या होते हैं, एक दूसरे को डिस्प्यूट ही फैलाते हैं, इनके संबंध ऐसे ही होते हैं। एज अ रिजल्ट इवन एन इनसिग्निफिकेंट बैक स्ट्रीट क्वारल, और जबकि जो है बैक स्ट्रीट क्वारल जो होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं जो ट्राइबल इश्यूज़ पे, उनके लिए भी जिम्मेदार होते हैं। बिटवीन द प्रैक्टिशनर्स ऑफ दीज रिलीजन्स रिजल्ट इन वाइड स्प्रेड राइट्स, और इससे जो आंदोलन होते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े आंदोलन का भी रूप ले लेते हैं, दे बाय क्रिएटिंग एन एटमोसफेयर ऑफ हैटर्ड एंड डिसहार्मनी, और इससे जो है असमानता फैल जाती है, दुनिया में असमानता फैल जाती है। One day you look up and see one of them, eyeless silent, a zigzag sky showing through the knocked out clockwork after a riot, a peace march time bomb, or a precise act of nature in a night of lightning। Knocked out means in a broken state। राइट क्लैशेस जो होते हैं ना, लार्ज स्केल पे दंगे जिसे कहते हैं। प्रिसाइज एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक ठाक। नाइट ऑफ लाइटनिंग्स, अ शॉर्ट पीरियड फुल ऑफ इवेंट्स। अगर इसमें देखें तो इसमें कवि कहना चाहता है इन लाइन से, एक दिन आप जो है नज़र दौड़ाते हैं तो उनमें से किसी एक घंटाघर यानी एक धर्मोपदेशक, क्योंकि घंटाघर यहाँ पे किसको संबोधित किया गया है, धर्मोपदेशक को नेत्रहीन यानी मार्गदर्शन में असमर्थ, मतलब वो मार्ग नहीं दिखा पा रहा है, और शांत व्यक्तित्व देने में असमर्थ देखते हैं। उसकी टूटी फूटी घड़ी में से होकर टेढ़ा मेढ़ा आकाश धर्म का यानी तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाना उस धर्मोपदेशक के द्वारा एक बहुत बड़ा विकराल रूप ले लेता है। अगर वो सही अपने वो धर्म के बारे में अगर सही हमको ज्ञान नहीं दे रहा तो विकराल रूप भी हो जाता है। उस धर्म का स्वरूप विकृत हो चुका था। तब हम ये देखते हैं कि वो घंटाघर क्या हो गया है, डाउनफॉल पे आ गया है, बेकार हो गया है, ठीक है ना, अब उसमें से आवाज़ नहीं आएगी, यानी वो धर्मोपदेशक क्या हो गया है, टूटी फूटी अवस्था में हो गया है और वो बेकार हो गया है। कि हमें धर्म के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है, और ऐसा लगता है ऐसा किसी दंगे किसी शांति यात्रा में फटने वाले टाइम बम की तरह होता है ये, या बड़ी प्राकृतिक आपदा के बाद होता है कि हमें धर्म के स्वरूप में परिवर्तन की आवश्यकता अनुभव होती है, और उस समय हमें लगता है कि नहीं, हमें जो है क्या है, अपने रिलीजन को थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाए। The poet then draws a picture of the things that happens after riot comes to an end। The poet says that one day when we look up to a clock tower after a riot has come to an end, we discover that the clock tower is in destroyed condition and seems to be an eyeless entity। The knocked out clock tower is symbolic of the false and inappropriate preachings that had been done by incompetent preachers, stakeholders of different religion। Through the destroyed clock tower, we see a zigzag sky, which is a symbolic of disordered society and religion। zigzag sky से मतलब क्या है, अस्त व्यस्त समाज। Hence, the poet has symbolically conveyed the fact that many preachers, stakeholders preach false religious premises to the common people। As a result, an apparently unending strain of religious hatred and intolerance is created amongst the commoners of the society। The poet then compares the after-riot situation to a peace march time bomb। The poet subtly says that after a riot, peace marches are often conducted in order to mourn the destructive outcome of the riot। However, there is always a possibility of a spark of hatred that might lead to disputes between the people belonging to different religion all over again। This spark, ये जो चिंगारी होती है, थोड़ी सी भी अगर भड़क जाए तो क्या कर देती, हेटर कंडीशन में ले आती है, लोग उनसे नफरत करने लग जाते हैं। दिस स्पार्क ऑफ हेटर माइट एक्सप्लोड लाइक ए टाइम बॉम्ब, और ये एक टाइम बॉम्ब का रूप ले लेती है। टू वर्ड्स यानी एक धर्मोपदेशक ने थोड़ा सा भी अगर गलत कुछ कह दिया है तो इट मे बी अ वेरी बिग स्पार्क, thereby destroying the peace initiative that had been undertaken by them in the first place। Similarly, the wrong preachings by the stakeholders of various religions
not only spark differences and hatred amongst their respective practitioners, but they also result in massive destructive riots. और इससे जो है समाज क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है. लास्टली द पोएट कमेंट्स ऑन द प्रिसाइज पावर ऑफ नेचर, यानी कुल मिला के जो है नेचर का क्या पावर है. द पोएट सेज दैट नेचर स्ट्रैटेजिकली क्रिएट्स एन ऑरा ऑफ ह्यूज थंडरस्टॉर्म एंड हेल. और उस समय जो है क्या होता है, जब ये ऐसी स्थिति आने लग जाती है कि हाँ आपस में लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, तो नेचर भी जो है शांत नहीं बैठता है, वो थंडरस्टॉर्म लाता है. एंड हैंस एवरीथिंग सीम्स टू गेट ब्लैकन, सब तरह काला काला दिखाई देता है, विथ ऑकेजनल लाइटनिंग्स इन द स्काई. सच ए साइट ऑफ नेचर इज सिम्बलिक ऑफ द राइट्स that lead to massive devastation to both life and property. और उस समय जो है हमें यही लगता है कि हमारा सब कुछ क्या हो गया है, नष्ट हो गया है. So students, it is all about the poem Time and Time Again, given on page number 74 by A.K. Ramanujan. Thank you and have a nice day.